Hello students, we were doing infinite series. Last time we did D'Alembert ratio test to check convergence or divergence of a positive term series. So what was D'Alembert ratio test? Let us recall. According to D'Alembert ratio test, summation an, a positive term series, is convergent if the value of limit n approaches infinity, an upon an plus 1 is equal to L, and if L greater than 1, the series is convergent. For L less than 1, the series is divergent. For L equal to infinity, series again convergent, and for L equal to 1, the test is inconclusive, means no conclusion. So let us take question number 1 based on D'Alembert ratio test. Test the convergence of the series 1 factorial upon 5 plus 2 factorial upon 5 square plus 3 factorial upon 5 cube and so on. So let us construct the nth term. So nth term अगर आप देखो इस सीरीज की फर्स्ट टर्म क्या है 1 फैक्टोरियल अपॉन 5. सेकेंड टर्म क्या है 2 फैक्टोरियल 5 स्क्वायर. थर्ड टर्म क्या है 3 फैक्टोरियल 5 क्यूब. तो जब हम इसकी nth टर्म लिखेंगे तो वो क्या होगी n फैक्टोरियल, ठीक है, और 5 टू द पावर n. So nth term is n factorial upon 5 to the power n. So what is an plus 1? An plus 1 is n plus 1 factorial upon 5 to the power n plus 1. जहाँ आपके पास n है उसको हमने रिप्लेस कर दिया n plus 1 से. So let us now calculate ratio of an upon an plus 1. So जब हम इसकी रेशो लेंगे so we are left with 5 upon n plus 1. So take limit n approaches infinity. So जैसे ही हम n approaches infinity लिमिट इसकी लेते हैं so it is 5 upon n plus 1. So when n approaches infinity 5 upon n plus 1, so it approaches 0. So 0 is less than 1. So by D'Alembert ratio test, the ratio, that is the value of limit n approaches infinity an upon an plus 1 which is equal to L is less than 1, and whenever L is less than 1 the series is divergent. So by D'Alembert ratio test the given series is a divergent series. So this completes question 1. Next, examine the convergence or divergence of the series. So this series is a positive term series. So let us check convergence or divergence of this series. So इसमें अगर हम observe करें what is our first term? First term is 1, second term is 1 into 3, 1 into 2, third term is 1 into 3, 2 into 3, fourth term अगर हम ऊपर लिखे numerator में so it will be 1 into 3 into 4, और ऐसे ही अगर हम nth टर्म लिखें सो इट विल बी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू सो ऑन अप टू n. सो ये आपके पास न्यूमरेटर में आपके पास nth टर्म. अब लेट अस सी डिनोमिनेटर. फर्स्ट टर्म इज 3, सेकेंड इज 3 इंटू 5, थर्ड इज 3 इंटू 5 इंटू 7. सो फोर्थ अगर हम लिखें इट इज़ 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9. फिर अगर फिफ्थ टर्म लिखे तो इट इज़ 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11. सो इस सीरीज़ की हमने nth टर्म निकालनी है. किसकी 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 अप टू सो ऑन. सो व्हाट विल बी द nth टर्म? सो यहाँ पे हमने nth टर्म an इज इक्वल टू दिस इज ap विद कॉमन डिफरेंस 2, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11. सो nth टर्म कैसे आएगी इसकी a प्लस n माइनस 1 इंटू 2. So a is 3, n minus 1 into 2 is 2n plus 1. So it is 1 into, sorry 1 नहीं आएगा यहाँ, it is starting with 3, not 1. So it is 3 into 5 into 7 into 9 up to 2n plus 1. Clear? So this is our denominator. और सबका square, so it is whole square. So this is an. So what is an plus 1? n तक तो आपने लिखना ही है. उसके बाद n plus 1
और नीचे 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन 2n+1, और n की जगह जब आप n+1 रिप्लेस करोगे तो इट इज़ 2n+3. सो नेक्स्ट टर्म इज 2n+3 का होल स्क्वायर. नाउ डिवाइड an अपॉन an+1. सो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये तो सारी an टर्म है, दिस कैंसल. सो यू आर लेफ्ट विथ n+1 अपॉन 2n+3 का होल स्क्वायर. सॉरी 2n+3 ऊपर चला जाएगा और n+1 डिनोमिनेटर में रह जाएगा. सो इट इज़ 2n+3 अपॉन n+1 का होल स्क्वायर. सो अब आपने क्या करना है, ऊपर डिनोमिनेटर में से भी n कॉमन, न्यूमरेटर में से भी n कॉमन, और नीचे डिनोमिनेटर में से भी n कॉमन. सो जैसे ही n को कॉमन लोगे तो ऊपर स्क्वायर है तो इट इज़ n स्क्वायर, नीचे भी n स्क्वायर. सो यू आर लेफ्ट विथ 2 + 3 अपॉन n, और डिनोमिनेटर में यू हैव 1, n की जगह 1 + 1/n होल स्क्वायर. सो दिस n स्क्वायर कैंसल, टेक लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, सो वी विल गेट 4. ठीक है, 2 का स्क्वायर दिस इज 0, 1/n is 0, so it is 2 का स्क्वायर which is 4, 1 का स्क्वायर which is 1, so it is 4. 4 is greater than 1, so by D'Alembert ratio test the series is convergent because the ratio when n approaches infinity is greater than 1. For L greater than 1, by D'Alembert ratio test the series is convergent. Next is test the convergence of the series 1 upon 1, 2, 3, x upon 4, 5, 6, x square upon 7, 8, 9 and so on, and the restriction is on x, that x is always greater than 0, x is always positive. Clear? So let us construct nth term first. An first term is x to the power 0 which is 1, second term is x to the power 1, third term is x to the power 2, fourth term is x to the power 3. So अब अगर देखो तो फोर्थ टर्म में x की पावर 3 है, थर्ड टर्म में x की पावर 2 है, सेकेंड टर्म में x की पावर 1 है, और फर्स्ट में x की पावर 0 है. सो nth में x की पावर क्या होगी, n-1. क्लियर? नेक्स्ट अब डिनोमिनेटर में आ जाओ, इट इज़ 1, फर्स्ट 1, फिर नेक्स्ट टर्म की देखो, फर्स्ट टर्म 4, फिर नेक्स्ट टर्म की फर्स्ट टर्म इज 7. ठीक है, सो नेक्स्ट टर्म की फर्स्ट टर्म देखोगे इट इज़ कॉमन डिफरेंस आप देख सकते हो, दिस इज़ 1, दिस इज़ 4, दिस इज़ 7, नेक्स्ट क्या आएगी 11. ठीक है, सो यू हैव टू राइट एन अ टर्म ऑफ 1, 4, 7, 11 एंड सो ऑन. अब सेकेंड टर्म पे आ जाओ, इट इज़ 1, फिर इट इज़ 2, नेक्स्ट टर्म इज़ 5, नेक्स्ट टर्म इज़ 8. सो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितने का है, 3 का. सो एन अ टर्म ऑफ 2, 5 एंड 8 एंड सो ऑन. थर्ड टर्म अगर हम देखें इट इज़ इसी की फर्स्ट टर्म देखें, और दिस इज़ 3, नेक्स्ट इज 6, नेक्स्ट इज 9, नेक्स्ट इज 12. सो इट इज़ विथ कॉमन डिफरेंस 3. सो इसकी है ना टर्म क्या होगी, 1 + n-1 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस दैट इज 3. सो आपके पास एन टर्म क्या आ गई, 1 + n-1 इंटू 3 इज 3n-2. क्लियर? नेक्स्ट की 2, 5, 8 की एन टर्म क्या आएगी, 2 + n-1 टाइम्स 3, सो इट इज़ 3n-1. और नेक्स्ट 3, 6, 9 की एन टर्म क्या आएगी, 3 + n-1 इंटू 3 कॉमन डिफरेंस विच इज़ 3n. सो वी विल गेट an दिस. ठीक है, सो डिलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाने के लिए वी हैव टू फाइंड an अपॉन an+1. सो an+1 के लिए व्हाट इज an+1, पुट n एज n+1. सो वी विल गेट x to the power n एंड हियर इट इज़ 3n+1, 3n+2, 3n+3. क्या किया, सिंपली n को n+1 से रिप्लेस किया. सो लेट अस नाउ डिवाइड an अपॉन an+1. जैसे ही हम an अपॉन an+1 को डिवाइड करेंगे वी विल गेट दिस. सो ऊपर से n कॉमन, नीचे से n कॉमन, सो ऊपर आ गया n³, नीचे आ गया यहाँ पे भी n³, दिस कैंसल्स एंड यू आर लेफ्ट विद दीज टर्म्स. सो टेकिंग लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, दिस इज 0, 3 + 0, 3 + 0, 3 + 0. सो ऊपर आ गया 27, नीचे भी 3, यहाँ पे -0, 3 - 0 एंड 3, इट इज़ 27. सो 27 अपॉन 27 कैंसल, सो you are left with 1 upon x. Now it will depend on 1/x. x is non-zero. x is always greater than 0. Clear? So 1/x पे डिपेंड करेगा. अगर 1/x greater than 0 है then series convergent by D'Alembert ratio test. और अगर 1/x less than 1 है then series divergent by
डिलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। अब 1/x इन्फिनिटी होगा नहीं बिकॉज x इज नॉट 0. So by D'Alembert ratio test, summation an convergent if 1/x is greater than 1. 1/x greater than 1 means if x is less than 1, and diverges if 1/x is less than 1, that is x greater than 1. But for x equal to 1, the test fails. Clear? So ratio test is inconclusive. So now we have to deal when x is 1. When x is 1, what is our nth term? Nth term is 1/3 to the power n 1/3 n minus 2, 3n minus 1 and 3n. स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो टेस्ट किए कंपैरिजन टेस्ट, अगर आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में n की पावर आ जाए तो यू हैव टू टेक हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर, और हम उसी हिसाब से अगर n की पावर डिनोमिनेटर में है तो हम bn को चूज़ करते हैं और हम अप्लाई करेंगे कंपैरिजन टेस्ट फॉर्म 5th टू डील विद सच केसेस. सो यहाँ पे 1/n³ आ गया. ठीक है. सो लेट bn इज 1/n³ एंड टेक रेशियो ऑफ an/bn and take limit n approaches infinity. So what will we get? We will get 1/27. So 1/27 is non-zero and finite. Summation, अब by comparison test form 5th, summation an and summation bn behave alike. Clear? So let us now check convergence of bn. Convergence of bn is summation bn is convergent by p series test, क्योंकि n to the power क्या है 3 है, which is greater than 1. But summation bn is convergent by p series test, therefore summation an is convergent. अब स्टूडेंट हमारे पास कंबाइंड रिजल्ट क्या आया इस सीरीज के लिए? दैट समीशन an इज कन्वर्जेंट वेन एवर x इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड डाइवर्जेंट इफ x इज ग्रेटर देन 1. सो दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेस्ट द फॉलोइंग सीरीज फॉर कन्वर्जेंस. यहाँ पे भी आपको x के ऊपर रिस्ट्रिक्शन मिल गई दैट x इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो इट इज़ अ पॉजिटिव टर्म सीरीज. ठीक है. अब सीरीज किस तरह की है देखो, 1 प्लस x²/2 प्लस x4/4 प्लस x6/6 एंड सो ऑन. सो निग्लेक्टिंग द फर्स्ट टर्म, अगर हम इस फर्स्ट टर्म को निग्लेक्ट कर दें, अब निग्लेक्ट क्यों करना पड़ेगी हमें फर्स्ट टर्म? अब यहाँ पे अगर हम देखें इट इज़ x⁴, फिर उसके बाद सीधा x⁴ आ जाता है, फिर x⁴ एंड देन x⁴ ठीक है. चलो वहाँ पे भी अगर हम यूनिफॉर्मिटी देखें तो वो बन जाएगी. x⁴ कॉमन डिफरेंस 2 का चल रहा है, यहाँ पे 0, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6. बट अगर आप नीचे देखो डिनोमिनेटर में इट इज़ 1 फिर 2 फिर 4 फिर 6. सो यहाँ पे तो आपके पास 1 2 के कॉमन डिफरेंस 1, फिर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2, फिर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2, फिर नेक्स्ट टर्म आएगी 8 तो कॉमन डिफरेंस 2. बट इन दोनों का कॉमन डिफरेंस तो 2 नहीं है. ठीक है. सो इसलिए जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर अस. सो हमें क्या करना है, इस फर्स्ट टर्म को निग्लेक्ट. अगर हम 1 को छोड़ दें तो आपके पास 2 4 6 आपके पास कॉमन डिफरेंस 2 आ जाता है, सीरीज बन जाएगी ये. इट इज़ AP विद कॉमन डिफरेंस 2, तो इसका nth टर्म आपके पास आ जाएगा. बट अगर आप 1 ले लेते हो यहाँ पे तो फर्स्ट और सेकंड टर्म में आपके पास फर्स्ट टर्म में 1 फिर 2 फिर 4 फिर 6, तो वो आपको यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस नहीं मिलता 1 और 2 के बीच में 2 का. सो अब हमने ये किया था कि अगर आपके पास कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हमने चेक करनी है किसी सीरीज़ की, और हम उसमें से फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को हटा दें और फिर उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करें, तो आपके पास जो ओरिजिनल सीरीज़ होगी उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस सेम रहेगी. किसके सेम रहेगी? उस सीरीज़ के जिसमें आपने फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को हटा के चेक की है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस. स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब ये है फर्स्ट टर्म हटा दी, सेकेंड टर्म, 3 टर्म, मतलब जिन टर्म्स को आप गिन सको, 10 टर्म्स हटा दी पहली, या पहली 11 टर्म्स हटा दी है. तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को अगर हम हटा दें और फिर कन्वर्जेंस चेक करें तो बिहेवियर डज नॉट चेंज.
So let us neglect the first term of the series. So after neglecting the first term of series, that is 1, तो series आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर 2 के मल्टीपल्स 2 4 6, so it is x to the power 2n, और नीचे भी 2 के मल्टीपल्स हैं 2 4 6, so it is 2n. What is an plus 1 term, so it is x to the power 2n plus 2. n को रिप्लेस किया आपने n plus 1 से. So take ratio an upon an plus 1. So what will we get? We get 1 plus 1 by n into 1 by x square. Now taking limit. When we take limit, this is 1. 1 by n is 0. So 1 plus 0 is 1 into x square is 1 by x square. And x is not 0, x is positive, greater than 0. So it will depend on 1 by x square. So by D'Alembert ratio test, the summation an, the series summation an converges whenever 1 by x square is greater than 1. That is whenever x square is less than 1. And diverges if 1 by x square is less than 1, that is x square is greater than 1. Clear? Now आप यहाँ पे चाहे इसको x square less than 1 लें, चाहे x less than 1 लें, 1 and सेम है, क्योंकि x जो है वो पॉजिटिव लेना है आपने. और यहाँ पे आप चाहे x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 लें, चाहे आप x ग्रेटर देन 1 लो. ठीक है. सो यहाँ पे आप ले सकते हो डायरेक्टली, ईदर यू कैन टेक x स्क्वायर लेस देन 1 और यू कैन सिंपली से x इज लेस देन 1 बिकॉज x इज ऑलवेज पॉजिटिव. और यहाँ पे भी ईदर x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 और x इज ग्रेटर देन 1. नेक्स्ट, फॉर x इक्वल टू 1 द केस फेल्स. सो व्हाट इज an अपॉन, अब an अपॉन an प्लस 1 से तो यहाँ पे डिलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट से तो हम कुछ नहीं कह पा रहे. द टेस्ट इज इनकंक्लूसिव फॉर x इज इक्वल टू 1. सो लेट अस चेक द nth टर्म. सो nth टर्म an इज 1 बाय n. सो डिनोमिनेटर में जहाँ आपको n मिल जाए टेक bn. bn इज 1 अपॉन n, कैंसिल कर दो n को. सो व्हाट इज an अपॉन bn? लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी इज हाफ विच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट. बट by comparison test from fifth, summation an and bn behaves alike. So let us check convergence of summation bn. Summation bn is summation 1 upon n, so it is divergent by p series test. So therefore summation an is also divergent. So combined result आपके पास क्या आया? The given series is convergent whenever x is less than 1 and divergent whenever x is greater than or equal to 1. Students, ये कुछ examples थे बेस्ड ऑन डिलेम्बर्ट रेशो टेस्ट. इससे अलग जो हम वीडियो करेंगे नेक्स्ट टाइम, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे हम बाय यूजिंग सॉल्व करने, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करेंगे यूजिंग डिलेम्बर्ट रेशो टेस्ट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.